हेलो बच्चों, कैसे हैं? एंड वेलकम ऑन आवर चैनल एडर कलेक्शन. एंड टुडेज टॉपिक इज revisiting the not rational number, irrational number. Okay, irrational number. So okay, revisiting the irrational number. So what you know about the irrational number? What is irrational number? In class 9th you have studied about irrational number. So what is irrational number? क्या क्या पढ़ा है क्लास 9th में irrational number के बारे में? About irrational number, first of all, definition. So you can say that a number is irrational number if it cannot be in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal 0. Okay, when we study about the rational number, what is the definition of rational number? For rational number, it can be in form of P upon Q. Okay, where P and Q are integers and Q is not equal 0. So opposite is a rational number. As I told you, आप पहले भी बताया था that rational number and irrational number. Rational number and irrational number both makes the real number. Is it right? So we are talking about the irrational number and decimal expansion. जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ओके, non-terminating and non-recurring. For example, you can write 1.314721, any digit, but it is non-terminating and non-recurring. जैसे I told you in last video that non-terminating means terminate नहीं होता, increasing. Okay, infinite तक बढ़ रहेगा. और non-recurring means रिपीटेटिव मीन्स सपोज आप लिख रहे हो 1.3333, दिस इज रिकरिंग, रिपीटिंग, एंड दिस वन वेयर दिस इज नॉट रिपीट्स, सो दिस इज नॉन रिकरिंग. अंडरस्टैंड? ठीक. सो दिस इज द इरेशनल नंबर. ये आप 9th में भी पढ़ चुके हो, नथिंग इज न्यू हियर. एंड एनीथिंग एल्स अबाउट इरेशनल नंबर जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हो? Can irrational number represent on number line? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड देखिए, √2, √3, √5, √11, √7 लिखते हैं पहले, √7, √11. These are the irrational number. By these numbers you सब जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, any conclusion? We can say that square root of prime numbers, square root of prime numbers are irrational. Is it? Yes, this is square root of irrational number. ये देख, √2, 3, 5, 7, these are the prime numbers. Okay, 2, 3, 5, 7 से, and square root of these numbers are irrational. But
only the square root of the prime numbers, only the irrational number. Suppose under root 15, is it irrational? Yes, this is irrational number, but this is not a prime number, this is a composite number. Under root 15 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है. तो कुछ ये कंपोजिट नंबर है जिनका रूट भी इरेशनल भी हो सकता है, कंपोजिट. देखिए जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे किसी नंबर का, ठीक है, जैसे अंडर रूट 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, आंसर 2 आएगा. अंडर रूट 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो इसका जो वो आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज इरेशनल, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है. सो एक तरीके से आप कह सकते हो विच नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर कैन बी इरेशनल नंबर. ओके, सो रूट 15 आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 एंड रूट 5, ठीक है. तो दीज आर द irrational number and multiplication of irrational number also the irrational number. यही मैं आपको बताई थी that root 15 is the irrational number because product of irrational number also a irrational number. Okay, sum of the irrational number 2 plus root 5, this one also a irrational number. Product of irrational number is also a irrational number and sum of the irrational number also the irrational number. Here root 3 and root 4, if you multiply root 2 and root 3, what we find, root 6. Yes, this one also is irrational number, root 6 also is irrational number. Okay, so now मैं जो पूछ रही थी इससे पहले, that can we represent irrational number on number line or not? In last class you have done it. रूट 2 को रिप्रेजेंट करना 1 then 1 then 1 then like this, रूट 2 here करा था कुछ ऐसे, याद आया? So yes, irrational numbers also can be represented on the number line. Simply all the real numbers can be represented on the number line, so irrational number also can be represented on number line, no doubt. Okay, so now we have to prove क्या, that root 2 is a irrational number. Root 2 is a irrational number. That is new what we do in class 10th. Okay, क्या, proving the irrationality, proving the irrationality. Okay, root 2 is a irrational number. We have to prove it. Prove करना है इसको, पर ये प्रूव करने से पहले हम एक थ्योरम करेंगे, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस थ्योरम वी कैन प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. और ये टॉपिक को हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ये तो अभी 9th क्लास का रिवीजन था इसलिए मैंने वेरी फास्ट आपको रिवाइज करा दिया. अब थोड़ा सा स्लो जाएंगे बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा. ओके, सो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है तो पॉज करिए, उसको बैक करिए, फिर से देखिए, और कीप योर कॉपी एंड पेन with you. Okay, which theorem we have to prove? Okay, the theorem that we have to prove is, statement is let
P is a prime number. ओके, ये थ्योरम है. P is a prime number. Okay. If P divides a square, then P divides a. Okay. Where a is a positive integer. क्लियर? नहीं ना, कुछ भी क्लियर नहीं. क्या लिखा हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है. चलो ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते. लेट P इज अ प्राइम नंबर. थ्योरम इज P इज अ प्राइम नंबर एंड इफ P डिवाइड्स द a स्क्वायर. अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P ऑल्सो डिवाइड a. देखिए, जैसे कोई नंबर है, सपोज 5, और 5 से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, फुली डिवाइड 20. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये 110 का स्क्वायर है. ठीक है, 10 का स्क्वायर 105 से डिवाइड होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये 10 भी 5 से फुली डिवाइडेड होगा. अंडरस्टैंड? जैसे 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, उल्टा ले दीजिए. 9 का स्क्वायर 81. ठीक है, अब अगर 3 से हम 81 को डिवाइड करें, इट इज डिविजिबल. यस. सो क्या आएगा? 2 and 7 27. So if 81 is divided by 3, तो according to this theorem 9 is also divided by 3. Yes, this is the statement of the theorem. Understand? Right? चलिए प्रूफ करते हैं. देखिए, आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बट जो नेक्स्ट बाकी थ्योरम्स हमें प्रूफ करनी है, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, जो इस एक्सरसाइज में यही करना है हमें. तो इसके लिए हमें इसी थ्योरम की ज़रूरत होगी, इसलिए हम इस थ्योरम को एक बार प्रूफ करते हैं. ठीक है. लेट द प्राइम factorization of a b as a is equal to p1 p2 p3 and pn so on, where p1 p2 p3 ये सारे क्या होंगे? they are the primes. मीन्स ये फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकते. दे आर द प्राइम नंबर्स. ओके, नाउ ए स्क्वायर इक्वल क्या होगा? p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर. ओके, ये आप इस तरीके से अगर आपको कंफर्ट ना लगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. pn and multiplied by the pn, p2, p3 and pn. okay, होगा ये. so now ऐसा में गिवन क्या है इसमें? that p divides a square. okay, p divides a square. that means क्या होगा कि ये according to fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी हमने. क्या था? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ
product of primes and factorization is unique. Okay, a part of order of factors. ठीक है, तो क्या था, given that, what is given, that P divides A square. Here given P divides A square. Okay, so therefore from fundamental theorem of arithmetic that P is one of the factor of, मतलब इनमें से P1 P2 P3 इनमें से होगा एक होगा. ओके, P is one of the prime factor of A square. Why? Because P divide A square. P divides A square, that means P is a factor of A square, right? So using the uniqueness part of theorem, थ्योरम में कहा है ना दैट फैक्टराइजेशन आ यूनिक. फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है. यूनिक द फैक्टराइजेशन पार्ट ऑफ द यूनिट, इट रियलाइज क्या, दैट द only prime factor of A square are P1, P2 and Pn. So P is one of them, and P1, P2 and Pn are the factor of A. So P divides E. क्लियर? कुछ भी क्लियर नहीं, पता है मुझे. देखो क्या बोल रहे हैं, P is one of the prime factor of A square. Using uniqueness part of the theorem, it realized that only the prime factor of A square is P1, P2, Pn. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, that P divides A square, that means क्या होगा, P is one of the prime factor of A square. P को हम क्या बोल रहे हैं, A square का एक फैक्टर. लेकिन यूनिकनेस पार्ट क्या बोलता है कि जो फैक्टर है वही होगा. अगर पहले हमने सपोज करे हैं P1, P2, P3 एंड Pn, ठीक है, ए स्क्वायर के फैक्टर हैं ये ना, यहाँ पे देखिए ये सारे ए स्क्वायर के फैक्टर हैं. तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि P एक नया फैक्टर आ जाए, बिकॉज फैक्टराइजेशन तो यूनिक होता है. ठीक है ना. कंक्लूजन क्या निकलेगा, दैट P इज वन ऑफ द P1, P2, P3 एंड अप टू P9. क्लियर? सो these are the factors of A also, है ना, P1, P2, P3. That means P is also a factor of A, and if P is also a factor of A, that means P divides A. Clear? Right? Contradiction है, contradiction. ठीक है. इस मेथड को हम कहते ही हैं proof by contradiction. Okay? Proof by contradiction. पहले सही मान लो फिर गलत प्रूफ कर दो. हाँ सही है, एकदम सही है, जो बोल रहे हैं वो सब सही है, और उसके बाद जो हमने सही माना उसके लिए, जो सच माना उसके लिए झूठ प्रूफ कर देते हैं.
पहले ट्रू फिर फॉल्स. दिस इज द कॉल्ड प्रूफ बाय द कंट्राडिक्शन. तो यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन यही हो रहा है ना. हमने कहा कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, बट यहाँ पे सपोज ये नहीं करा कि p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए. प्राइम फैक्टर्स क्या लिए? p1 p2 p3 एंड p9, राइट. सो हमने यहाँ पे कंट्राडिक्शन लाया ना कि हम जो बोल रहे हैं वो है ही नहीं, बिकॉज इफ p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर तो फिर p इनमें से ही एक होना चाहिए ना, p1 p2 एंड p9 में से, बिकॉज फैक्टराइजेशन इज यूनिक, राइट. ओके, इज दैट एनी कन्फ्यूजन? टेल मी. मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, पर एक बार खुद करके देखिएगा, बिकॉज द राइटिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी लिखने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट. सो डू इट. आज के लिए होमवर्क यही है कि आपको ये दोबारा से करके देखना है, राइट. नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो पहले मैंने पार्ट लिखा था, दैट जो हमारी नेक्स्ट है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर. इस टॉपिक इसको प्रूफ करेंगे, राइट. इसी मेथड से ये इसी थ्योरम के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे, √2 इज अ इरेशनल नंबर. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.